امید کے برعکس عوام کو ریلیف نہ ملا۔ آئندہ 15 دنوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر سستا۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، پناہ گزین کیمپ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایک ہی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی، ہر سو لاشوں اور ملبے کا ڈھیر۔ حملے میں 1 ٹن کے 6 بم گرائے گئے۔ جبالیہ کیمپ کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ کیمپ میں سینکڑوں فلسطینی پناہ گزین موجود تھے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 200 شہادتیں ہو چکی۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 8500 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ پٹی پر حماس کی مزاحمت، حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی پھر کھلی دھمکی، کہا یہ وقت جنگ کا ہے۔ جنوب اسرائیل پر ڈرون حملہ، یمنی حوثی باغیوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ دہشت گردی کے متعدد واقعات میں افغان باشندے ملوث پائے گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے، غاصب ریاست کی طرح غیر ملکیوں کے املاک پر قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر دستاویزات رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طرف سوچیں، نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے، نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہے۔ آئی ایم ایف کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو۔ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ، تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیسفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کی کیا یقین دہانی کرائیں؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت پابندی نہیں لگائی۔ نگران حکومت پابندی لگا کر کیوں غیر آئینی غیر قانونی کام کرے گی؟ نہ یہ ہمارا اختیار ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ سیاسی جماعت پر پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی ہوں۔ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ چاہتے ہیں ملک میں مستقل حکومت آئے۔ مسلسل 4 شکستوں کے بعد پہلی فتح، ورلڈ کپ میں پاکستان اب فارم میں آیا۔ بنگلہ دیش کو چاروں شانے چت کر دیا۔ پہلے شاندار بولنگ اور فیلڈنگ، پھر عمدہ بیٹنگ۔ بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا۔ 205 رنز کا ہدف 33ویں اوور میں پورا کر لیا۔ چانس ملتے ہی فخر زمان کا لاٹھی چارج، 7 چھکے اور 3 چوکے لگائے۔ 74 گیندوں پر 81 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق کی بھی 68 رنز کی عمدہ بیٹنگ۔ دونوں اوپنرز میچ بنا گئے، بابر اعظم کچھ نہ کر پائے۔ رضوان اور افتخار احمد نے گیم پوری کی۔ پاکستان کی عمدہ بولنگ کے سامنے بنگلہ دیش کی ٹیم ڈھیر۔ شاہین افریدی کا تباہ کن سپیل، 9 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 وکٹیں اڑائیں۔ وسیم جونیئر نے 3، حارث رؤف نے 2، افتخار اور اسامہ میر نے ایک کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ بہترین کارکردگی دکھانے پر فخر زمان مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر آ گیا۔ شاہین کی اونچی اڑان، شاہین شاہ افریدی وکٹوں کی تیز ترین سینچری بنانے والے پاکستان کے پہلے بالر بن گئے۔ فاسٹ بالر نے اعزاز کیریئر کے 51ویں میچ میں حاصل کیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں، معلوم تھا کہ فخر کھڑے ہو گئے تو میچ آسان ہو جائے گا۔ اگلے 2 میچز بھی اسی طرح کھیلیں گے۔ ابھی ٹیم کے پاس آگے جانے کے چانسز ہیں۔ پاکستان اپنا اگلا میچ 4 نومبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ پی سی بی کی 5 رکنی انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ انضمام الحق کو نہ بلانے کا فیصلہ، انکوائری کمیٹی 5 دن میں رپورٹ پی سی بی کے حوالے کرے گی۔ انضمام نے پلیئر ایجنٹ کمپنی کے ساتھ شیئر ہولڈرز ہونے کے سکینڈل پر استعفیٰ دیا تھا۔ کہا تھا کلیئر ہونے پر وہ دوبارہ عہدہ سنبھالیں گے۔ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری
आगाज़ करेगी। 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। कायद नवाज शरीफ ने यह भी फैसला किया है कि वो चारों सूबों का भी अनकरीब दौरा करेंगे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा, मफाहमत की सियासत को फरोग देने की बातें। नवाज शरीफ का सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का फैसला, चारों सूबों के दौरे करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे करने वालों को भी जवाब, इंतखाबी तैयारियों का शेड्यूल भी बना लिया। मंशूर कमेटी कायम, उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी बड़ों की बड़ी बैठक। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए एहसन इकबाल ने बताया, मुंतखब हुकूमत के 5 साल पूरे करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले बताएं, इस्तीफे क्यों दिए, क्यों ऑपोजिशन में नहीं बैठे? 2017 में हमसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। क्या अब नाइंसाफी के फैसलों पर पहरा दिया जाएगा? नून लीग अपने मसाइल खुद हल कर रखी है, किसी की तरफ नहीं देख रहे। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन के लिए कमर कस ली। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में उमायदीन से मुलाकात, आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। आसिफ जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल कामयाबियां आवाम के एतमाद का मजर हैं। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। आवाम की हिमायत से अवामी हुकूमत कायम करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ अदालती फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा रद्द। एहतसाब अदालतों को भी मुकदमे का हतमी फैसला करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्री कैन को सुने बगैर इस बारे में कोई हतमी या अबूरी फैसला नहीं किया जा सकता। विफाक की तरफ से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में भी ऐसी इस्तदा नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई को नोटिस, जेल में दरख्वास्तों की नकूल फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा, इंट्रा कोर्ट अपील में लिखा केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 5 रुकनी बेंच ने सुना था। इस नुक्ते पर मुतमईन कर लिया तो अपील के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में हम तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल करके नया बेंच बना देंगे। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दे चुकी है। दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त ही नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई का कहना है, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, घर का खाना नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के वकील आफ्ताब बाजवा की गुफ्तगू, कहा स्लो पॉइजनिंग वाले मामले पर तिबी मुआयना कराएंगे। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत, 10 गवाह पेश, बयान रिकॉर्ड करने का मामला फिर मुलतवी। आइंदा समाअत सुबह 10 बजे होगी। हर समाअत पर 3 गवाहों के बयानात और उन पर जिरा होगी। मौलाना फजलुर रहमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा, कहा अफगान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, गैर कानूनी तारकीन की वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह के इक़दाम से ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। दो तरफा मुज़ाकरात के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए। आलीशान कमरों में इजलासों पर इजलास, नतीजा 0। आलमी ताकतें गजा में जंगबंदी कराने में बुरी तरह नाकाम। सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेसूद खत्म। अमेरिका फिर खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। जंगबंदी की शदीद मुखालफत। इमराती सफीर ने कहा, फलस्तीनी बच्चों की मौत हमारी जमीन को दागदार करेगी। सऊदी वजीर दिफा की अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात। फलस्तीनियों की हिमायत और इंसानी इमदाद की इजाजत पर जोर। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, जंगबंदी नहीं, इमदाद के लिए वक्फे पर गौर हो सकता है। रूसी सदर ने कहा, फलस्तीनियों के कत्लेआम के पीछे अमरीकी हाथ हैं। गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने पर बरतानिया का तासुब से भरा इकदाम। बरतानवी कंजरवेटिव रुकन ने पार्लियामेंट को काबीना से निकाल दिया। बरतानवी वजीर दाखिला ने गजा के हक में मुजाहिरों को नफरत मार्च का नाम दे दिया।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है गजा की सूरत हाल काबिल मुजम्मत है, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। जो कुछ इसराइल ने किया किसी भी किस्म का जवाब फराहम नहीं। गजा में सहाफ़ियों की जिंदगियों को शदीद खतरात, कई सहाफ़ी ड्यूटी की राह में जाने कुर्बान कर चुके। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइली बरबरीत में 26 सहाफ़ी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कहना है कि गजा के अस्पतालों में मरीज फंस चुके, इनके लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होना नामुमकिन बन चुका। इसराइली बमबारी से 45% मकानात और इमारतें तबाह हो चुकी। नन्ही बच्ची की पुकार बड़े बड़े हुक्मरानों से ज्यादा मजबूत, फलस्तीन को आजाद करो। नन्ही कैनेडियन बच्ची की आवाज की दुनिया भर में गूंज। टोरंटो में फलस्तीन के हक में रैली, पोलैंड में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा, पुर्तगाल, नीदरलैंड समेत कई ममालिक में रैलियां, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी रियासत ओहायो के सिटी काउंसिल इजलास में फलस्तीन के हक में नारे। चीनी कंपनीज का अहसन इकदाम, बाइडू और अलीबाबा ने ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम हटा दिया। ऑनलाइन डिजिटल नक्शों में सिर्फ फलस्तीन इलाके मौजूद। इसराइल को शर्म आनी चाहिए, आलमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आलमी बरादरी अगर अपना किरदार अदा करती तो ये दिन देखना न पड़ता। मगरबी ममालिक इसराइली तरफदारी छोड़ दें, जल्द अज जल्द जंग बंदी की कोशिश करें। जब गैस मिलती ही नहीं तो कीमतों में इजाफा क्यों? पीपल्स पार्टी को गैस की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश। शहरी रहमान ने कहा मौजूदा महंगाई में आवाम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। ये फैसले मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़े जाएं तो बेहतर है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद महंगाई में भी कमी होनी चाहिए थी। निगरान हुकूमत आवाम के लिए मजीद दुश्वारियां पैदा ना करे। निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं कि कीमतों में इजाफा करे, इस हुकूमत का एक ही मैंडेट है, इलेक्शन कराना। गैस की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक शदीद खफा, कहा हम इस जुल्म को नहीं मानते, मसाइल का हल निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं। एलपीजी की कीमत में कमी, फी किलो 10 रुपए का कमी का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 117 रुपए कमी, कमर्शियल सिलेंडर 452 रुपए सस्ता। असद उमर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी, कहा तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, IPP को सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। उधर साने 9 मई के मुकदमात की तहकीकात में असद उमर तलब, इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने आज शाम 4 बजे बुला लिया। 9 मई वाक़यात के केस के ATC पे समात, असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की अबूरी जमानतों में तौसी। मुशरा बीबी की जमानत में भी 14 नवंबर तक तौसी कर दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक और कामयाबी, तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान IPP में शामिल। जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पड़ गई जान, 100 इंडेक्स में 437 पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स 51,900 की सतह क्रॉस कर गया। डॉलर की मज़ाहमत, इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा, 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 50 पैसे इजाफा, 283 पर बंद हुआ। आवरान में शहीद जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली की नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। तर्जुमान पाक फौज का कहना है दहशत गर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी।
लाहौर में सांस लेना मुश्किल, फिजाई आलूदगी में शहर का दुनिया भर में पहला नंबर। फिजा इंतहाई खराब, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। नई दिल्ली फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। माहिरीन का बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। स्मॉग होती क्या है, ये इतनी ख़तरनाक है क्यों? स्मॉग में कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मैदान शहजाद शौकत ने मार लिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत 464 वोटों की लीड से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। आजम नज़ीर तारड़ की हिमायत याफ्ता शहजाद शौकत को 1706 वोट पड़े। हामिद खान ग्रुप के अब्दुल कदूस 1242 वोट ले सके। जीत के बाद भरपूर जश्न, वकला की नारेबाजी, फूलों की बारिश। आजम नज़ीर तारड़ ने शहजाद शौकत को गले लगाया। जमात इस्लामी का 9 नवंबर को बच्चों का गज़ा मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं बच्चे दुनिया के हुक्मरानों को गैरत दिलाएंगे। 7 नवंबर को डॉक्टर्स की रैली भी निकाली जाएगी। बाबर आजम को इज्जत ना देने पर बहुत मायूस हूँ। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन बाबर आजम के हक में बोल पड़े। कहा स्क्रीनशॉट्स लीक होना बाबर आजम की तौहीन है। बाबर आजम आलमी मेयार के बल्लेबाज है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आप कप्तानी के बारे में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम सुल्तान जोहर हॉकी कप के सेमीफाइनल में पूल के तीसरे मैच में मलेशिया को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। सेमीफाइनल में 3 नवंबर को जर्मनी से मुकाबला होगा। पाकिस्तान 5वीं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी को तैयार। चैंपियनशिप आज से 5 नवंबर तक इस्लामाबाद में होगी। मेगा इवेंट में दुनिया भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और नामवर फिल्मसाज हसन अस्करी मनोमट्टी तले जा सोए। लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैयद नूर, नासिर अदीब समेत नामवर फनकारों की शिरकत। हसन अस्करी ने सुल्तान राही समेत कई अदाकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।